یہ بہت اچھا بزنس ہے، آپ اسے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا ہمیشہ اگر سائڈ بزنس رہے تو آپ اپنی جو خواہشات، ایکسٹرا خواہشات جس کو کہتے ہیں، عیاشیاں کہتے ہیں نا، وہ آپ اس سے پوری کر سکتے ہیں 10 جوڑے لگا کے، اور آپ سوچیں گے کہ آپ اس پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، تو جی نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کم سے کم بھی 3 قسم کی چیزیں لگائیں۔ 3 قسم کی چیزیں کون سی؟ سب سے پہلی تو آپ نے وہ چیز لگانی ہے جو ٹرینڈ میں ہے، آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے۔ دوسری طرح کا برڈ آپ کو وہ لگانا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ٹرینڈنگ برڈ بنے گا۔ تیسرا برڈ وہ لگائیں جو آپ کو بہت پسند ہے، آپ ہمیشہ 5 جوڑوں سے کم نہ لگائیں۔ 5 جوڑوں میں سے ہو سکتا ہے کہ 3 جوڑے نہ چلیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اور پرابلم آئے ڈیڈ ان شاء، لیکن 5 جوڑوں میں جو اگر 2 جوڑوں نے بریڈ کر کے بچے پال دیے تو وہ 2 جوڑے آپ کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ پہلے تو کہیں کہیں لوگوں نے پرندے لگائے ہوتے تھے ایسے، اب ایک گلی میں 4 شیڈ ہے۔ اب ایڈوانس ایگریکلچر کیا ہوگا؟ اب آرٹیفیشیل انکوبیشن کی طرف لوگ جانا شروع ہوں گے۔ برڈز اتنے رکھیں جتنے آپ سنبھال سکیں، برڈز اتنے مہنگے خریدیں کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ سٹارٹ میں اگر برڈ کو پکڑ لیا تو آپ اس کو بچا سکتے ہیں میڈیسن دے کے، اگر آخری دموں پہ تو دنیا کا کوئی بریڈر نہیں بچا سکتا۔ السلام علیکم، دس از محمد عرفان ایگریکلچرس۔ آج ماشاء اللہ جس شخصیت کے پاس آیا ہوں، آج اگر عرفان ایگریکلچرس ہے، اور جو کچھ بھی میری ترقی کی ہے سارا کچھ کریڈٹ جبران بھائی کو ماشاء اللہ جاتا ہے۔ ڈسکشن تو نہیں ہو سکی جبران بھائی سے، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اس کے لیے جبران بھائی معذرت، تو اس وجہ سے ڈسکشن نہیں ہو سکی۔ ابھی انشاءاللہ بیٹھ کے ڈسکشن بھی کرنی ہے۔ جو کچھ بھی اس ٹائم میرے پاس ہے، جو کچھ میں نے سیکھا ہے، سارا کچھ جبران بھائی کی ویڈیوز سیکھا، اور ان کا ہی سارا کچھ دیا ہوا نالج ہے جو کہ ویڈیوز کے ذریعے ہے۔ فزیکلی تو ماشاءاللہ ہم آج مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنا بھی نالج ہے وہ سارا کا سارا جبران بھائی کے سے ہی لیا ہوا ہے۔ اگر میں اپنا بتاؤں تو جب میں نے ایگریکلچر کی فیلڈ میں آیا تھا، برڈز ہابی میں نے سٹارٹ کی تھی، تو میں نے سٹارٹنگ میں جب میری یونیورسٹی چل رہی تھی تب میں نے آلموسٹ 5.5 لاکھ روپے کا لاس کیا برڈ کی فیلڈ میں۔ تو تب سے میں نے جبران بھائی کو جاننا سٹارٹ کیا، جبران بھائی کی بیسک ویڈیوز میں نے دیکھنی سٹارٹ کی ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب ہم کسی برڈ کی فیلڈ میں آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار ایویں بس کام ہے، برڈ لے کے آئیں گے بریڈ کر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پراپر ایک چیز ہے جسے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ تو ماشاءاللہ میں نے جتنے بھی بیسک سیکھی ہیں، جو کچھ بھی سیکھا سارا کا جبران بھائی کی ویڈیو سے ہی سیکھا ہے ماشاءاللہ۔ اور میں نے ایک شیڈول بنایا ہوا تھا جبران بھائی کی ویڈیوز کا، جب میں یونیورسٹی میں تھا، جب میں سیکھ رہا تھا بیسک، میں نے ایک دن میں 4 ویڈیوز جبران بھائی کی لازمی دیکھنی ہے، اور وہاں سے میں انفارمیشن لیتا اور پراپر میں نوٹس بناتا تھا۔ جو جبران بھائی مجھے بتاتے تھے میں پراپر لیسن کی طرح سے یاد کرتا تھا، نوٹس بناتا تھا۔ تو آج ماشاءاللہ جو کچھ بھی ہوں میں، وہ جبران بھائی کی بدولت ہی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان جزاک بھائی۔ اللہ۔ تو جبران بھائی کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں، کیونکہ ماشاءاللہ یہ تو سمجھ لے کہ اب دادا استاد ہو چکے ہیں، میرے بھی استاد ہیں۔ تو جبران بھائی کی طرف جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جبران بھائی، کیسے ہیں؟ آپ کا شکریہ، بہت بہت اللہ کا سر شکر ہاں، میرے استاد محترم ہے۔ جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی اس ٹائم ہوں، سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہے۔ جی جی بہت بہت تو اگر شکریہ آپ کا۔ عرفان ایگریکلچر سب طرح کی طرف سے آپ کو کریڈٹس کا جاتا ہے جی جی بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ تو جبران بھائی آپ کی جرنی اسٹارٹ کہاں سے ہوئی برڈ کی فیلڈ میں؟ بیسکلی میں بہت چھوٹا تھا، مطلب بہت چھوٹی عمر میں، مطلب اسکول گوئنگ ہوں گا میں، تو وہاں پہ جو ہے نا مجھے بہت ضدی تھا میں، اور کیونکہ سب سے چھوٹا تھا تو سب سے لاڈلا بھی تھا، تو مجھے جو ہے نا وہ میرے گھر والوں نے چوزے لے کے دیے۔ میں جو ہے نا وہ مجھے نا پتنگیں اڑانے کا بڑا شوق تھا، ٹھیک تو ٹھیک اس سے ٹھیک۔ جان چھڑانے کے لیے نا چھت پہ رو کر دھوپ میں پتنگ اڑاتا تھا، انہوں نے چوزے لے دیے۔ وہ چوزے جو ہے نا وہ بلی آئی، بلی چوزے لے گئی، میں نے بہت تنگ کیا گھر والوں کو، بہت ضد کی۔ تو پھر جو ہے نا وہ میرے بھائی نے مجھے جو بجری گر ہوتے ہیں نا اس کا ایک جوڑا لا کے دیا، تو وہ بجری گر کا جوڑا ایک لکڑی کے کیج میں نے رکھا۔ اب بجری گر ایسی چیز ہے ہر جگہ بریڈ کر جاتے ہیں، بالکل وہ ماشاءاللہ وہ بریڈ کیا، بچے نکلے، وہ بچوں کے آپس میں جوڑے بنے، تو وہ جب کوئی 10-12 ہو گئے نا، تو وہ میرے گھر کے پاس ایک شاپ تھی، میں نے وہ جا کے وہ بچے سارے پکڑ کے میں نے اس کو بیچ دیے۔ اس نے مجھے جب پیسے دیے، اتنی چھوٹی عمر میں آپ کی جب پاکٹ منی 20 روپے ہو اور آپ کو 300-400 روپے مل جائے، تو وہ آپ تو چھلانگے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ بالکل بالکل۔ وہ جو ہے نا وہ میرا ایک اسٹارٹ تھا، مجھے وہاں سے جو پرندوں کا ایک جنون اسٹارٹ ہوا۔ لوگوں نے جو ہے نا وہ پہلے شوق اور بعد میں بزنس کیا، لیکن میں نے پہلے بزنس کیا بعد میں شوق کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس تو وہاں سے میں اسٹارٹ ہوا، پھر رکا نہیں۔ تو جبران بھائی
किस सन से आपने स्टार्ट किया है बर्ड फार्मिंग? ये तकरीबन 25 साल हो गए हैं। माशाल्लाह हाँ जी, माशाल्लाह 25। तकरीबन 25 साल हो गए प्रॉपरली जिसको कहते हैं। तो जिब्रान भाई माशाल्लाह आप कहते हैं शागिर्द बन चुके हैं। जी जी, मैंने जो है ना वो अपना यूट्यूब चैनल पे जो है ना सिर्फ बेसिक शेयर किए हैं। बिल्कुल। सिर्फ सोच यही थी कि एक नया आने वाला जो बंदा है वो पैसा कमाए, उसको लॉस ना हो, क्योंकि नया आने वाला बंदा, आप नए हैं, आपने बर्ड खरीदे, बर्ड मर गए, आपका आपका शौक भी खत्म, आपने वो हॉबी भी छोड़ दी, मतलब कुछ भी नहीं रहा आपके पास, आप कहते हैं यार फजूल है। मैं चाहता हूँ कि यार जो पुराने बंदों की मुझे परवाह नहीं है, मैं चाहता हूँ जो नया बंदा इस फील्ड में आए वो मेरी वीडियो देखे और बेसिक्स से सीखे, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो लाइफ स्टॉक है, स्पेशली जो हमारे परिंदे हैं, बहुत नन्ही सी जान है, छोटी सी गलती की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। तो पहले जो सबसे पहले जो 3 स्टेप है ना वो आपको सीखने हैं, ठीक है। हाउसिंग, जहाँ आपने परिंदे रखने हैं, आपको पता हो कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए आपको, आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हाउसिंग, कीपिंग, देन ब्रीडिंग। आपको रखने का तरीका, उसका डाइट प्लान, उसका सॉफ्ट फूड, उसके हर परिंदे को रखने का तरीका अलग है, उसका डाइट प्लान अलग है, उसका बिहेवियर अलग है। आपने देखे ना 8 बिल्कुल तरह के बिल्कुल परिंदे हैं, बिल्कुल हर परिंदे का बिहेवियर अलग है। एज कुछ इट इज। बहुत अग्रेसिव बर्ड्स हैं, कोई बहुत मासूम से हैं, डव कितनी मासूम है। तो आपको ये सीखना है, जो भी परिंदा रखना है पहले उसकी कम से कम भी 50% आपको पता होगा इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। हाउसिंग, कीपिंग, फिर ब्रीडिंग। तो जिब्रान भाई माशाल्लाह आपने इतने ज्यादा बर्ड्स रखे हुए हैं, तो आपको सबसे ज्यादा किस म्यूटेशन में मजा आ रहा है? मैं बेसिकली, मुझे जो है ना वो, अगर पर्सनली पूछे तो मुझे फिंचेस बहुत पसंद है, गोल्डन आपको दिखाई माशाल्लाह। मैंने, मुझे गोल्डन के कलर्स बहुत पसंद है। मैं और मेरी वालदा को भी बहुत गोल्डन बहुत पसंद है। वो नीचे एक तो घर के वो सेटअप ही मैंने नीचे बनाया था, क्योंकि वालदा मेरी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं आ सकती। तो माशाल्लाह। बेसिकली उन्हीं के लिए बनाया था कि वो बैठती हैं वहाँ पे, और मैं भी शाम की चाय वहाँ पीता हूँ। गोल्डन मुख्तलिफ फिंचेस की एक्टिविटी देखने को बहुत मज़ा आता है। माशाल्लाह अल्लाह ने खैर दे। लेकिन हाँ जी शुक्रिया, लेकिन मेरे से अगर पूछें तो मुझे जो बर्ड मुझे लगता है ना कि ये बहुत टफ ब्रीडर है, और लोग कहते हैं कि यार ये बहुत टफ ब्रीडर है, ये नहीं ब्रीड करता, मेरा जुनून है कि मैं उस बर्ड को ब्रीड करूँ। माशाल्लाह, और आप करवाते भी मैं हैं। करवाता हूँ। और ये है ना, मुझे लोगों ने कहा अफ्रीकन ग्रे ना लेना, अफ्रीकन ग्रे ना, ये नहीं ब्रीड करता। लोग अब 5-5 साल हो गए ब्रीड, माशाल्लाह इतनी अच्छी ब्रीड आती है मेरे पास। तो जिब्रान भाई माशाल्लाह जो बर्ड हॉबी है एक बहुत अच्छी हॉबी है, साथ साथ बहुत अच्छा बिजनेस भी है। तो डेफिनेटली। क्या कोई बंदा फुली डिपेंड इस पे करके अर्निंग कर सकता है, अपने घर का खर्च चला सकता है, सर्कट वगैरह? देखें बात डिपेंड है कि देखिए मेरा इतना बड़ा सेटअप है, आपने देखा है, माशाल्लाह बिल्कुल आपने बिल्कुल। 500+ केजीज है और कॉलोनी अलग है। माशाल्लाह। मैं अगर कहूँ कि यार मैं इस पर डिपेंड करना चाहता हूँ तो यस, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप सोचें कि 10 जोड़े लगा के, और वो भी आप नए हैं और आपको पता ही नहीं कि उन 10 जोड़े की एक्टिविटी, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, और आप सोचेंगे फिर आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं, तो जी नहीं, कभी भी नहीं कर सकते आप। आपके अखराजात, अगर आपके बीवी बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, आप रेंट के घर पे रहते हैं, ठीक है, और आपके दूसरे अखराजात, बच्चों को स्कूल की फीसें, ये तोते आपके नहीं पूरे कर सकते। तो जितने भी आपके चैनल की तरफ से जितने भी दोस्त देख रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि हम जो है ना, जैसे बाहर के मुल्क से मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं कि जी मैं वहाँ तंग आ चुका हूँ, मैं अब यहाँ पाकिस्तान में आके तोतों का काम करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें उनको लगता है कि वो बर्ड रख के तो अपने घर का सिलसिला बहुत अच्छा चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऑनेस्टली, मैं अपने दिल से अगर आप दोस्तों को मशवरा दूं तो आप जो जो भी जॉब कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, आप कोई कारोबार कर रहे हैं वो नहीं चल रहा उसको मत छोड़ें। ये बिजनेस अनसिक्योर बिजनेस है। दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक सिक्योर बिजनेस होता है और एक अनसिक्योर बिजनेस होता है। सिक्योर बिजनेस वो है, यहाँ जैसे आपकी जॉब है लगी हुई है, आपको महीने बाद तनख्वाह आनी है, उसमें छुट्टियां भी करने को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। कारोबार आपका नहीं चल रहा, लेकिन आपकी दुकान पे जो चीज़ें पड़ी हैं उनको कुछ नहीं होने वाला। अनसिक्योर बिजनेस में बहुत से ऐसे बिजनेस आते हैं जो अनसिक्योर हैं, मतलब परिंदे रात को है सुबह नहीं है, ऐसे होता है ना। बिल्कुल। रात को आप कहते हैं यार रात को तो ये ठीक था, सुबह मर गया, क्यों? जोड़ा भी टूट गया, इन्वेस्टमेंट भी गई, फिर खरीदेंगे। तो ये अनसिक्योर बिजनेस है। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ये आपका हमेशा अगर साइड बिजनेस रहे तो आप अपनी जो ख्वाहिशात, एक्स्ट्रा ख्वाहिशात जिसको कहते हैं, अय्याशियाँ कहते हैं ना, वो आप इससे पूरी कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपने घर के अखराजात, जो अपना घर का चूल्हा है, वो आपने सिक्योर बिजनेस से चलाना है। चाहे वो आप जॉब करते हैं मत छोड़ें,
آپ کوئی کاروبار आपकी शॉप है, आप उसको कंटिन्यू रखें, वो ये सोच के कि ये मेरे घर के अखराजात के लिए है, मेरे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे मेरी अय्याशियाँ हैं वो तोतले पूरी करनी है, और वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिब्रान भाई, अगर कोई न्यू पर्सन इस फील्ड में आता है तो स्टार्ट किस मोटिवेशन स्टार्ट में क्या लेके आए वो? देखिए मैं ये कहता हूँ कि अक्सर लोगों से मशवरा लोग करते हैं, वो कहते हैं यार आप ना 10 जोड़ों की बजाय कोशिश करें एक जोड़ा लगाएं, 17 लगाएं, हम्म एक जोड़ा ऐसा लगा लें कि वो 10 जोड़ों में भारी हो। हम्म लेकिन आप देखें कि आप मशवरा किसको दे रहे हैं, उस बंदे को जिसको पता ही कुछ नहीं है। ऐसे। तो मैं इससे बिल्कुल उलट कहता हूँ, आप पहले ये सोच लें कि आपने लगाना क्या है। आप लब्बड़ लगाना चाहते हैं लगाएं, आप लब फिंचरी लगाना चाहते हैं आप लगाएं, जावा लगाएं, लेकिन कोशिश करें चीज़ें कम से कम भी 3 किस्म की चीज़ें लगाएं। 3 किस्म की चीज़ें कौन सी? सबसे पहले तो आपने वो चीज़ लगानी है जो ट्रेंड में है, आपको पसंद है नहीं पसंद है, हम्म ठीक है, आप वो जो ट्रेंड में चल रही है, जिसकी लोगों की डिमांड है, आप वो सबसे पहले लगाएं। दूसरा बर्ड, दूसरी तरह का बर्ड आपने वो लगाना है जो आपको फिर सोशल मीडिया पे आप सर्च करते रहते हैं ना, तो दूसरी तरह का बर्ड आपको वो लगाना है जो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ट्रेंडिंग बर्ड बनेगा। हम्म आप उसको एटलीस्ट 2 जोड़े लेके आप उसको ब्रीड करवाएं, ताकि जब वो ट्रेंड में आए एटलीस्ट 2 के 10 जोड़े आपको बन चुके हों, हम्म तो आपको मजा आएगा उसको बेचने का। तीसरा बर्ड वो लगाएं जो आपको बहुत पसंद है, आप कहते हो यार मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, उसका चाहे एक ही जोड़ा लगा लें। वो एक जोड़ा जो आप लगाएंगे ना, वो आप सबको शौक को बरकरार रखेगा। माशाल्लाह। दूसरा ये कि हमेशा 5 जोड़ों से कम ना लगाएं। अब ये मैं उलट बात करने लगा, हम्म 5 जोड़ों से स्टार्ट करें। उससे ये होता है कि 5 जोड़ों में से हो सकता है कि 3 जोड़े ना चलें, हो सकता है उनमें से कोई और प्रॉब्लम आए डेड इन सेल, लेकिन 5 जोड़ों में जो अगर 2 जोड़ों ने ब्रीड करके बच्चे पाल दिए, तो वो 2 जोड़े आपका हौसला बढ़ाएंगे। तो जिब्रान भाई, इंटरनेशनली बर्ड का स्कोप कैसे है? क्या एक्सपोर्ट वगैरह हो रहे हैं? और बाहर आप तो माशाल्लाह अमेरिका रहते हैं, तो अमेरिका में क्या स्कोप है इसका, और क्या हम इसका एक्सपोर्ट किस लेवल कर सकते हैं? आप अब मैं आप सच्ची बातें अब कहते हैं मैं कर रहा हूँ, आप बर्ड कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, हम्म क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी बर्ड जो है ना वो महंगा है, ऐसे ठीक है। बाहर हमेशा वही बढ़ जाएगा जो पाकिस्तान में सस्ता और बाहर महंगा है, ऐसे। ठीक है। तो आप बाहर बर्ड नहीं बेच सकते, लेकिन इलीगली तौर पे आपके बाहर बर्ड वही जा रहे, इलीगली तौर पे, लीगली तौर पे नहीं जा रहे, इलीगली तौर पे वही बर्ड जा रहे हैं जो यहाँ पे बहुत सस्ते हैं। जैसे लबर्ड में आपके रोजी कोलीज है, उपलाइन है, फिशर है, हम्म आप देखें आपकी जावा है, डव है, ये चीज़ें जा रही हैं। बिल्कुल आपके जो एक्सपेंसिव बर्ड हैं वो नहीं, वो क्यों नहीं जाते बाहर, क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपके यहाँ बहुत महंगा है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह इतने ज़्यादा फैंसियर्स आ गए हैं, पहले तो कहीं कहीं लोगों ने परिंदे लगाए होते थे, ऐसे। अब एक गली में 4 4 शेड है, ठीक है। और माशाल्लाह। आने वाले वक्त में एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि बहुत से और भी लोग लगा रहे हैं शेड, जिसके हम्म बाद 20 जोड़े थे वो 40 कर रहा है, 50 कर रहा है। तो आपका अगर इसी तरह से चलता रहा तो आपको ज़रूरत ही क्या है बाहर बर्ड भेजने की? आपके यहीं पे लोकली बर्ड बहुत जो है ना वो लोग बाय करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, सबके बर्ड बिक रहे हैं, बाहर थोड़ी जा रहे हैं, बिल्कुल यहीं बिल्कुल। बिक रहे हैं, अच्छी चीज़ है। तो जिब्रान भाई, आप तो माशाल्लाह प्योर एक हॉबी कर रहे हैं, जी जी। शौक कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। तो आपका विजन क्या है? कहाँ तक देखना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर को? कहाँ तक देखना चाह रहे हैं? एग्रीकल्चर मैं ये कहता हूँ कि इस हॉबी में ना लोग आए, चाहे वो बिजनेस की नीयत से आए या शौक की नीयत से आए, लेकिन छोड़ के ना जाएं, हम्म छोड़ के ना जाएं। छोड़ के तभी जाएंगे जब आपको नॉलेज की कमी होगी, जब आप कैलकुलेशंस करके आएंगे, तब आप डेफिनेटली आप वो आपकी जो कैलकुलेशन जो आपने सोची थी वो पूरी नहीं कर सकते आप, हम्म तो तब आप उसको छोड़ देंगे, आप कहेंगे यार बिजनेस फारिग है। मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छा एडवांस एग्रीकल्चर हो जाएगा, क्योंकि अब इंशाल्लाह। पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, अब पता ही नहीं था, लोग हम्म गाइड नहीं करते थे। अब तो गाइड करने वाले माशाल्लाह इतने इतने सीनियर लोग जो है ना वो यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं। पहले तो बिल्कुल। मैं अकेले ही लगा हुआ था, शायद एक आधा चैनल और होगा। तो अभी माशाल्लाह बड़े बड़े सीनियर लोग वीडियोस बना रहे हैं, हम्म स्पेशली लवबर्ड में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, सीनियर लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो ये अवेयरनेस लोगों को मिल रही है। बिल्कुल। अब एडवांस एग्रीकल्चर क्या होगा, अब आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन की तरफ लोग जाना शुरू होंगे, हम्म ठीक है। ये एडवांस लोगों को पता ही नहीं है मशीन में अंडा रखना, उसका ये एक आसान काम नहीं है, उसकी पूरी कैलकुलेशन होती बिल्कुल। है। ये लोग जो है ना इसकी तरफ जाएंगे, फिर और बहुत सी चीज़ें एडवांस चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, लोग उसको सीखेंगे और डेफिनेटली बढ़ेगा काम। तो जिब्रान भाई, इसमें बेसिक सीखना कितना जरूरी है बर्ड्स में?
देखें, जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही कमजोर हो उसको कितना ऊपर ले जाएंगे आप। ऐसे ही। ठीक है ना। देखिए जब बिल्डिंग बनती है, बुर्ज खलीफा जब बना था, उनको पता है कि कितना, उनको कितने इंजीनियर ने उसको लगा कि जलजला आएगा तो क्या होगा, पानी आएगा तो क्या होगा, तूफान आएगा तो क्या होगा, बिल्कुल सारी प्लानिंग थी। तो ये भी ऐसे ही है, आपकी प्लानिंग मजबूत होनी चाहिए। जैसा कि मैं बार बार हर अपनी वीडियोस में न्यू फ्रेंचाइजी को कहता हूँ कि आपको स्टेप वाइज सीखना है, हाउसिंग, कीपिंग, देन ब्रीडिंग। लोगों ने उल्टा शुरू किया हुआ, ब्रीडिंग पहले लेते हैं, वो बाकी सब कुछ रह जाता है। ये बुनियादें जब तक मजबूत नहीं होंगी तो आप एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते, वो एक दिन गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान भाई एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे न्यू फेंसर को आप? न्यू फैंसीज माशाल्लाह न्यू फैंसीज को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने अंदर अगर आपने बर्ड्स रखे हैं, ये लाइव स्टॉक है, ये जानदार चीज़ है। एक तो ये कि बर्ड्स उतने रखें जितने आप संभाल सकते हैं, बिल्कुल और बर्ड्स इतने महंगे खरीदें कि जितनी आपकी हैसियत है। अपनी हैसियत से बढ़ के बर्ड नहीं खरीदें, नहीं तो आप खुदा न खासा एक इतना महंगा जोड़ा खरीद लिया जो आपकी हैसियत से बाहर था, पता चले एक पीस मर गया तो दूसरा पीस खरीदने की आप में सकत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है। आप क्या करेंगे, वो जो एक बच गया था वो भी बेच देंगे, वो भी सस्ता, तो ख़त्म हो गई आपकी कहानी। एक तो ये कि हैसियत से बढ़ के बर्ड ना लगाएं, दूसरा ये कि बर्ड उतने लगाएं जितने आप संभाल सकते हैं, और तीसरा आपकी नज़र हर बर्ड पे होनी चाहिए। हल्का सा भी बर्ड बीमार है, लोग वही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, वो जो सही वाला है वो भी दवाई पी रहा होता है, बॉक्स नहीं उतारते। आप जो भी बर्ड बीमार है, आपकी नज़र पूरी होनी चाहिए। जहां देखें बर्ड बीमार है, भूल जाएंगे उसके अंडे बच्चे हैं, आपने फौरन उसको जो है ना एक छोटे केज में डाल देना है, उसको हीट देनी है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, तो आपकी बचत है। लोग क्या करते हैं कि बर्ड बीमार है, आप किसी को तब पता चला जब आखिरी सांस ले रहा था, तो वो फिर हम लोगों को फ़ोन करते हैं, भाईजान बताएं क्या करेंगे। हम कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो मरने वाला, घंटे बाद मर जाएगा। अब क्या, बहुत लेट कर दिया तुमने। तो बिल्कुल बर्ड हमेशा, अगर बर्ड पे नजर रखेंगे ना, हल्की सी भी स्टार्ट में अगर बर्ड को पकड़ लिया तो आप उसको बचा सकते हैं मेडिसिन देके, अगर आखिरी दमों पे तो दुनिया का कोई ब्रीडर नहीं बचा सकता। चलिए इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया सर। आपने टाइम दिया। अगर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पूछूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा जी लंबी जी, हो ऐसा जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान भाई। आप दोस्तों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे और वीडियो पसंद आती है और आप चाहता है कि साइड विजिट करते रहे और आपके लिए वीडियो चलाते रहे, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान अभी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस वीडियो को पार्ट और नहीं पार्ट्स आएंगे माशाल्लाह से जिब्रान भाई का सेटअप इतना बड़ा है, तो ऑलमोस्ट कुछ 4-5 पार्ट्स में क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह आपको सब के सब पार्ट वक्तन वक्तन आते रहेंगे, आप लाजमी देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।